students, today we are going to start our first topic, the laws of motion in physics, lecture number 1. Let me discuss what content in the topic lecture number 1. Uh, what you have to learn. First one, topic to be continued. What you have to learn today? Uh, Basic of motion. What is the motion? What is the basic importance? What is the motion? What is the rest? Okay, the relative phenomena we have to discuss about that. The reference point and the reference frame, frame of reference point, as well as the state of body. State of body means when the body will be in motion, when the body will be in a rest, when the body will be change the directions. That is, these are known as the state of the motion. Then again, the rest and motion, basic difference, types of motion, the different types of the motion. That content we have to learn today. Now here, if you are observing the picture, what you are thinking? The person is running, means he is changing the action with respect to time and surrounding. What we can say? The person is in a motion. Okay, the same thing we'll discuss now one by one. Now here, if you are seeing the picture, photograph, that person. Kinematics and dynamics are the easiest chapter in the fluids physics. These are the kinematics. Sorry. Kinematics. Kinematics is a branch of science. In that science, we are dealing with that motion, with the mathematically. They are saying the kinematics and dynamics. Dynamics क्या है? Kinematics यानी क्या है? We are observing this type of motions, but we are not finding the cause. क्यों ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है? उसके कॉज देख रहे क्या अपन? नहीं. In dynamics, we are finding the cause also. Why the objects will be in motion? उसका कॉज भी देखना है. काइनेमेटिक में सिर्फ ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, कितना मोशन में आ रहा है, वो देखना है. समझ में आ गया? What is the kinematics? In kinematics, just we are dealing with the motion with mathematical term. फाइंडिंग अपन उसमें फाइंड करते हैं वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, इतना ही फाइंड करते हैं, है ना. वी आर नॉट फाइंडिंग द रीजन. उसके पीछे का रीजन देख रहे क्या अपन इसमें? नहीं. जस्ट वी आर कैलकुलेटिंग दैट काइंड्स ऑफ द मोशंस, है ना. उसके अलग. बट इन डायनामिक्स वी आर फाइंडिंग द कॉज आल्सो. व्हाई द ऑब्जेक्ट विल बी इन मोशन? क्यों ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है, कैसा जा रहा है, क्यों जा रहा है. वी आर फाइंडिंग द आंसर ऑफ व्हाई. किसमें आता है वो तुम्हारा? डायनामिक्स. आर द इजिएस्ट चैप्टर इन द फिजिक्स. ये फिजिक्स में एक सिंपल चैप्टर है जो आपको मोटिवेट करने के लिए बताया है ना. तो काइनेमेटिक्स क्या है बता दिया मैंने आपने. काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस. इन दैट साइंस वी आर डीलिंग विद द मोशन. मोशन की स्टडी कर रहे हैं आपने. और कैसा मोशन की स्टडी कर रहे हैं? इन मैथमेटिकल फॉर्म. मोशन की स्टडी कैसा कर रहे हैं अपन? इन मैथमेटिकल. वी आर नॉट फाइंडिंग द आंसर ऑफ व्हाई, हाउ. जस्ट वी आर फाइंडिंग हाउ द वेयर द ऑब्जेक्ट आर मूविंग, है ना. हाउ मच इट कवर द डिस्टेंस, व्हाट विल बी द वेलोसिटी, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट. दैट ओनली वी आर फाइंडिंग. वी आर नॉट फाइंडिंग द कॉज. उसके अपन कॉज दिख रहे क्या? नहीं. नाउ हियर द मोशन इज अ रिलेटिव फिनोमेना. क्या बताया तुम्हारे? देखो यहाँ पे आप फिगर ऑब्जर्व कर रहे होगे. तो व्हाट वी आर थिंकिंग, the persons are standing here, 1 2 3 4, that one boy and one girl here in the first frame. He's saying to that girl, you are in motion. And what about her? What she is saying to him? From my point of view, are you in motion? लड़का क्या बोल रहा है? लड़की को, you are in motion. तू आगे जा रही है, तू मोशन में है. But what is the point of her? Point of view. POV means point of view. From point of view of the girl, from my point of view, are in motion. You are in motion. उन्हें क्या बोल रही? तू मोशन में है. लड़का क्या बोल रहा है? तू मोशन में है. दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? अलग है ना. बिकॉज ऑफ दैट मोशन इज अ रिलेटिव फिनोमेना. द नेक्स्ट वन, व्हाट दे आर सेइंग, व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग अ डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस देन आई एम. इसका मतलब क्या है? दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, दोनों का सोचने का तरीका अलग है. व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो इसे, वो क्या है तुम्हारा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इसके पहले मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने शायद आपको पता होगा. सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ऐसा आप कहते हो. ऐसा होता है क्या? नहीं. Why we are saying for that? Because we are referring to us.
आपने को देख के करते हो आप, है ना. सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट अपन बोलते हैं, बट एक्चुअली सन राइज होता है क्या? नो, वी द अर्थ इज रोटेटिंग. अपन दोपहर में सन कहाँ पे आता है? अपने सर पे आता है क्या सर पे? नहीं, अर्थ इज रिवॉल्विंग. वी आर जस्ट फ्रेमिंग टू अस. अपन किसी को कंसिडर, वी आर द रेफरेंस पॉइंट. आपने को रेफर करके बोलते हैं, है ना. जैसे कि अपन कहीं ट्रेन में आगे जा रहे हैं, है ना, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो अपन क्या बोलते हैं? ट्रीज आर मूविंग बैक बोलते हैं ना, पोल्स आर मूविंग बैक बोलते हैं कि नहीं ऐसा? झाड़े पीछे जा रही, झाड़े पीछे जाती है क्या? एक्चुअली होता क्या है? वी आर मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट व्हाट वी आर सेइंग? वी आर सेइंग ट्रीज आर मूविंग बैक, है ना. बिकॉज व्हाई वी आर सेइंग लाइक दैट? बिकॉज मोशन इज अ रिलेटिव फेनोमेना. मोशन क्या है? रिलेटिव फेनोमेना. अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, है ना, तो मैं क्या बोलूंगा? द बोर्ड इज मूविंग अवे. बराबर है? इज करेक्ट? नाउ द बोर्ड इज क्लोजर टू मी. इज इट करेक्ट? Yes or no? No? Now again now just I am standing here. Now I am saying the board is moving away from me. Correct now? Now board is coming closer to me. सही है क्या गलत है? गलत नहीं है, सही है. Why? Because here I am referring to whom? Me. है ना. अभी मैं यहाँ पे था तो बोर्ड मेरे से दूर जा रहा था कि नहीं जा रहा था? जा रहा कि नहीं मेरे से दूर बोर्ड? इसका मतलब मैं सही हूं. अभी मैं क्या, बोर्ड मेरे नजदीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना. इसका मतलब मैं सही हूं. करेक्ट है. जैसे कि आप ट्रेन में सफर करते हो तो आप क्या बोलते हैं? झाड़ ट्रेन क्या जा रहे हैं तुम्हारे पीछे जा रहे हैं, पोल क्या जा रहे हैं तुम्हारे. ऐसा होता है क्या? फिर आप क्यों बोलते हो वैसा? बिकॉज यू आर रेफरिंग टू यू. आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है? ये है. सब अगर और एग्जाम्पल लेंगे, अकॉर्डिंग टू यू, है ना. अभी अकॉर्डिंग टू यू आंसर अलग होगा और अकॉर्डिंग टू ओपिनियन ऑफ द अदर पर्सन आंसर अलग होगा. अभी अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द बोर्ड? बोर्ड इज इन मोशन और रेस्ट. बोर्ड क्या है? मोशन में या रेस्ट में है? आपके हिसाब से, आपके हिसाब से बोर्ड रेस्ट में है, बट मेरे हिसाब से बोर्ड मोशन में है. मेरे हिसाब से क्या है बोर्ड? व्हाई? व्हाई द आंसर्स आर डिफर? व्हाई द आंसर्स आर डिफर? आपके हिसाब से बोर्ड रेस्ट में है और मेरे हिसाब से बोर्ड क्या है? ये क्यों? Because the frame of reference is different. When I am in motion, जब मैं मोशन में था तो मेरे लिए क्या बोर्ड क्या रेफरेंस पॉइंट बदल गया था. बोर्ड मेरे कभी नजदीक आ रहा है, कभी मेरे से दूर जा रहा है, बट यू आर इन स्टेबल ऑन द सेम प्लेस. तो आपका डिस्टेंस क्या है? तुम्हारा सेम है, इसलिए आपके लिए क्या है बोर्ड रेफरेंस में. और चलो और रेफरेंस पॉइंट आप बदल देंगे सपोज, तो आपका आंसर शायद बदल जाएगा. सपोज आपका कहना था कि ये बोर्ड क्या है तुम्हारा? ये रेस्ट में है. बराबर. चलो बोर्ड कहाँ है अपना? ये क्लास में है. क्लास कहाँ है? हिंगोली में है. बराबर है कि नहीं? हिंगोली कहाँ पे है? अर्थ पे है. अर्थ मोशन में क्या रेस्ट में है? अर्थ मोशन में तो बोर्ड कैसा होना चाहिए? फिर आपने पहले क्या बताया? आपने पहले क्या बताया? बोर्ड कैसा है बोले आपने. फिर अब कैसा बोल रहे? फिर अर्थ मोशन में है तो बोर्ड कैसा होना चाहिए? तो रेफरेंस पॉइंट बदल गया आपका. आप कहां से रेफर कर रहे हो? है ना. यू आर रेफरिंग फ्रॉम द अदर प्लैनेट. आप मून से रेफर कर रहे हो सपोज, तो मून से क्या अर्थ रोटेट हो रही है. करेक्ट है. तो फिर वहां पे का रेफरेंस पॉइंट अलग है, यहाँ का रेफरेंस पॉइंट अलग है. इसलिए इसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है और ये लड़की का पॉइंट, ये बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है. समझ में आया? इसलिए क्या कहते हैं अपन? द मोशन इज अ रिलेटिव फिनोमेना. कैसा है मोशन? रिलेटिव है. क्यों? अपन उसको रिलेट करते हैं. वी कैन नॉट जज द मोशन विद अ सिंगल पॉइंट. मोशन अपन एक पॉइंट से नहीं बता सकते. मोशन बताने के लिए आपने कितने पॉइंट लगे? मिनिमम 2 पॉइंट. विच आर द 2 पॉइंट्स? वन इज द ऑब्जेक्ट पॉइंट एंड रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट यानी क्या है? तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कहां से आप देख रहे हो वो क्या है तुम्हारा? रेफरेंस पॉइंट. वेयर फ्रॉम यू आर ऑब्जर्विंग, दैट पॉइंट इज नोन एज द, एंड यू आर ऑब्जर्विंग टू होम, दैट इज नोन एज द ऑब्जेक्ट पॉइंट. आप किसको देख रहे हो वो क्या है? ऑब्जेक्ट. कहां से देख रहे हो वो क्या है? रेफरेंस. तो आपने क्या पहले कंडीशन में क्या कहा था? अभी जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट. तो रेफरेंस पॉइंट कौन था? आप थे. ऑब्जेक्ट कौन था आपका? सन. समझ में आ गया? रेफरेंस पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट पॉइंट क्या है. अभी नेक्स्ट कंडीशन में बताया, मैंने बोर्ड का एग्जांपल बताया था मैंने, है ना. तो आपने पहले फर्स्ट टाइम बोला था कि बोर्ड क्या है तुम्हारा? रेस्ट में है. जब क्या था? रेफरेंस पॉइंट आप यहाँ पे थे और ऑब्जेक्ट पॉइंट यहाँ पे थे. आपका डिस्टेंस क्या है? फिक्स है. तो आपके लिए बोर्ड क्या था?
रेस्ट में था, फिर नेक्स्ट टाइम में आप दूसरे प्लानट पे भेजा मैंने आपको, मैंने क्या किया, आपको दूसरे प्लानट पे भेजा, मून पे भेजा है, मून मोशन पे है, अर्थ भी मोशन पे है, तो इसका डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस क्या हो रहा है तुम्हारा, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या आ गया, तुम्हारा ये मोशन में है। जैसे कि मैं नजदीक जा रहा था बोर्ड के, है ना, और मैं दूर जा रहा था, है ना, तो फिर मैं क्या बोल रहा था, बोर्ड मेरे लिए क्या हुआ, नजदीक में आया, मेरे लिए बोर्ड क्या गया, दूर गया, तो मेरे लिए बोर्ड क्या बन गया, मोशन में बन गया। क्यों, मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या था, मैं रेफरेंस पॉइंट था, और ये ऑब्जेक्ट पॉइंट कौन था, बोर्ड था। अभी डिस्टेंस मेरा फिक्स है, मैं यहाँ पे फिक्स हूँ, तो ये मेरे लिए बोर्ड क्या है, रेस में, मैं मोशन में होगा तो क्या होगा, बोर्ड भी मोशन में आ गया मेरे लिए, क्योंकि डिस्टेंस क्या होगा हमारा दोनों का कम हो गया अभी, बराबर है। मैं दूर जा रहा हूँ तो डिस्टेंस भी क्या हो गया, दूर, इसका मतलब मेरा डिस्टेंस क्या है, रिलेटिव डिस्टेंस मेरा चेंज हो रहा है, बराबर है। दैट इज व्हाट इज मीन बाय द मोशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी चेंजिंग इट्स पोजीशन, क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसकी पोजीशन कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट तुम्हारा मोशन में है। समझ में आया क्या, कैसा चेंज कर रहा है, पोजीशन कैसे चेंज कर रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। आप एक ही सराउंडिंग में हैं तो आप नहीं बोलेंगे बोर्ड मोशन में है बोल के, बोलेंगे बिकॉज यू आर इन सेम सराउंडिंग, तो आपकी सराउंडिंग में क्या, बोर्ड तुम्हारा मोशन में नहीं है, बट इन सराउंडिंग ऑफ द अदर, विद द रेफरेंस ऑफ सराउंडिंग वी आर चेंजिंग द पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या है, तुम चेंजिंग एनी एक्शन, इफ सपोज आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस, देन आई एम इन रेस्ट, आई एम रेजिंग माई हैंड ऑल्सो, then also you are saying sir are changing action, means sir will be in a motion. I am changing my place, then I will be in a motion. I am sitting on one place, that is I am in a rest. समझ में आया कि आपको मोशन क्या है, समझ में आया क्या, what is the motion, the object changes with respect to time and surrounding। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसकी पोजीशन चेंज कर रहा है, ऑब्जेक्ट भी चेंजेस विद द पोजीशन एज वेल एज एक्शन, पोजीशन और एक्शन व्हाटएवर कैन से, द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग इज नोन एज द मोशन। समझ में आया मोशन क्या है, तो इसलिए क्या है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, ये लड़का क्या बोल रहा है, यू आर इन मोशन, ये लड़के का पॉइंट ऑफ व्यू था, है ना, लड़की क्या बोल रही है, यू आर इन मोशन, क्यों, कि दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, अलग था, है ना, मेरे लिए लड़का स्टेबल था, लड़की जा रही होंगी तो लड़का बोल रहा है यू आर इन मोशन, लड़की को लगा कि बच्चे का दोनों का डिस्टेंस दूर हो रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, यू आर इन motion। Got it? Any doubt in that? Understood motion? Okay. What will explain the different frame of reference than I am? तो अपन देखिए, पहले ये रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहाँ था, ये अर्थ पे था, फिर बाद में तुम्हारा प्लांट पे लेकर गया मैं, प्लांट के हिसाब से क्या है तुम्हारा मोशन इसमें आ गया, समझ में आ गया। तो इसके लिए और एक एग्जांपल देखेंगे अपन, इसका मतलब समझ में आया आपको, रेफरेंस पॉइंट का मतलब समझ में आ गया, व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट, द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जहाँ से आप देख रहे हो वो पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट। कौन देख रहा है, वो रेफरेंस पॉइंट, है ना, आप देख रहे हो तो आप रेफरेंस पॉइंट हो गए, समझ में आया, जहां से देखना है वहां से। अभी सपोज ये लड़का, यू आर इन मोशन, तो इसमें रेफरेंस पॉइंट कौन आया, ये रेफरेंस पॉइंट आया, और लड़की कौन आ गई तुम्हारी, ऑब्जेक्ट पॉइंट, जो इन्हें बात कर रहा है, जब ये लड़की जब बात कर रही है, जब इसके लिए क्या है, ये रेफरेंस पॉइंट बन गया, और इसके लिए लड़का क्या बन गया तुम्हारा, ऑब्जेक्ट। गॉट इट, गुड। देखिए reference point, let now just we discuss about the same रेफरेंस पॉइंट। अभी बताया मैंने क्या है रेफरेंस पॉइंट, है जहां से आप रेफर कर रहे हो, उसे कहां से रेफर कर रहे हो, जहां से आप रेफर कर रहे हो वो पॉइंट क्या कहेंगे आप, रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स्ड पॉइंट, कंसीडर्स लाइन सरफेस स्पेस so that motion can be described easily by locating the position of the object। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, पोजीशन उसकी दिखा सकते हो। गॉट इट, जैसे कि देखो शिमला है ना, अभी यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे नेशनल हाईवे है, कार है, यहाँ से आप क्या आप बोल नहीं सकते कि जैसे कि समझो यहाँ पे आपकी कार है ना, यहाँ पे जा रही है तो आप, और यहाँ पे कार है ना, तो अपन क्या कहोगे, जैसे कि तुम्हारी कार आ रही है नेशनल हाईवे से, रूरल रोड पे उधर जा रही है, तो अपन क्या बोलेंगे, इज गोइंग देयर और द कार इज कमिंग अवे, वी आर नॉट गोइंग टू जज। आपको रेफरेंस पॉइंट होना मालूम है ना, मालूम होना जरूरी है। मील का पत्थर हर कुछ कहता है, क्या कहता है, अभी आपको उधर जाना है तो अपन क्या बोलेंगे, रूरल रोड है, इधर जा रहे होगे तो, उधर से आते होंगे तो क्या करेंगे अपन, कहाँ है, स्टेट हाईवे पे आ रहे हैं, बराबर है। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट तुम्हारा चेंज हो रहा है, जाते समय अलग आएगा, आते समय अलग आएगा। Just given the reference point now here the graph given here,
वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्प्रेइंग द रेफरेंस पॉइंट। तो अपन ऑब्जेक्ट से क्या कर रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट दिखा रहे हैं, बराबर है। तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ पे था, है ना, तो कहाँ पे था ऑब्जेक्ट, उसका टाइम क्या था, यहाँ पे इसका टाइम दिया है ना, ये 0 से अपन रेफर कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये टाइम एक्सिस, टाइम क्या है, किसके लिए रुकता है क्या, नहीं। तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ पे था, तो कहाँ पे था, कौन से टाइम पे कहाँ था, इसको दिखाने की जगह, जो कहाँ है ऑब्जेक्ट, वो दिखाने की प्लेस, यानी क्या उसका ऑब्जेक्ट पॉइंट। और कहाँ से देख रहे हैं आप, यहाँ से देख रहे हैं तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट, यहाँ से देख रहे हैं तो क्या है आपका रेफरेंस पॉइंट, है ना। ग्राफ में बताया, वी कैन सेट अप द फ्रेम ऑफ रेफरेंस बाय चूजिंग द 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस। 3 एक्सिस यानी कौन सा है तुम्हारा, एक्स वाई जेड, इस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड, दे आर 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। लाइक यू कैन सी द कॉर्नर ऑफ दैट डोर, कॉर्नर देखिए आप, कॉर्नर देखते हो तो क्या है, एक एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दैट वन इज द जेड एक्सिस। आप कोई भी कॉर्नर देखेगा आपको समझ में आएगा कि कॉर्नर में क्या है, 3 एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। that is known as the, they are 3 mutually perpendicular to each other, दोनों भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, और तीसरा क्या है तुम्हारा इधर से परपेंडिकुलर है ना, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। उसमें क्या है, क्यूबिकल में आप बैठे हैं सब, क्यूबिकल में, that is the 3 are the reference point here। रेक्टिलिनियर मोशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोशंस आर देयर, मोशंस के बहुत से तरीके हैं, ऐसा नहीं। जैसे कि बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का मोशन कैसे तुम्हारा रैंडम मोशन, कहीं भी जाता है बटरफ्लाई, पता है आपको, वी कैन नॉट जज वेयर इट विल बी गो, ओके। रेक्टिलिनियर मोशन, दैट इज मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। कैसा होता है मोशन, कैसा होता है ऑब्जेक्ट का, स्ट्रेट लाइन में होता है, उसे क्या कहोगे आप, रेक्टिलिनियर मोशन, याद रखो, द व्हेन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज द रेक्टिलिनियर मोशन। इट इज अ 1 डायमेंशनल 1D है। अब इसमें क्या 1D 2D 3D वैसे आते जाएंगे, है ना। दिस मोशन इज, मोशन समझ में आया आपको, मोशन इज अ 1D मोशन, सिंगल डायमेंशनल में है। अब यहाँ पे देखो द प्लेनर मोशन, प्लेनर मोशन में क्या एरिया आ गया, है ना, ये 1D गया, मोशन कितना हो गया तुम्हारा, ये 1D हो गया। ये क्या है तुम्हारा एरिया, यानी क्या है 2D। जैसे कि समझो उन्हें फर्शी पे क्या पानी डाल दिया, तो पानी कैसे तुम्हारा फैलते जा रहा फर्शी पे, वो क्या होगा तुम्हारा 2D, है ना। फर्शी पानी फैल रहा है ना, तो क्या होगा तुम्हारा 2 डायमेंशनल मोशन, एरिया कवर कर रहा है, प्लेन बढ़ रहा है ना। तो कोई चीज़ है, जैसे कि कोई भी चीज़ है, पहले समझो तुम्हारी चीज़ इतनी थी, तो एक्सपांड होते होते बढ़ते गई, तो चीज़ तुम्हारी क्या है प्लेन में बढ़ती गई, ऐसी ऐसी बढ़ रही, तो वो क्या है तुम्हारा 2 डायमेंशनल मोशन, खाली 2 एक्सिस में हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा 1 एक्सिस है, इन एक्स एक्सिस। यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा 2 एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस, है ना। ये क्या है तुम्हारा 2 डायमेंशनल मोशन। इसमें क्या है तुम्हारा 2 डायमेंशनल एरियल मोशन, एरिया यानी क्या प्लेन, है ना, एक प्लेन है ना। ये बोर्ड का काम इतना है, इतना छोटा बोर्ड है, बोर्ड बड़ा बड़ा हो गया, दीवार है, दीवार जी क्या है तुम्हारी प्लेन मोशन, प्लेन यानी क्या है 1 प्लेन सरफेस, नोन एज द प्लेनर। एंड स्पेस, स्पेस इज नोन एज 3D वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, क्यूबिकल। आप क्लास में बैठे हो, क्लास क्या है आपकी, क्यूबिकल है, 3 डायमेंशनल मोशन, है ना। एयर, एयर क्या है तुम्हारा सराउंडिंग में तुम्हारा 3 डायमेंशनल मोशन में घूमता है, बराबर है। किसी तरफ से गैस आया है तो आपको सब कुछ सेंस होता है ना, सेंट आता है कि नहीं। कोई आपके दोस्त ने गैस छोड़ा है तो आपको लास्ट कॉर्नर पे भी स्मेल आता है ना, क्यों, बिकॉज ऑफ इट इज अ 3 डायमेंशनल मोशन, स्पेस में घूम रहा है, दैट इज नोन एज द 3 डायमेंशनल। एरियल मोशन का तुम्हारा प्लेन जा रहा है ना। तो लीनियर यानी क्या एक लाइन में जा रहा है, प्लेनर मोशन यानी क्या एरिया बन रहा है और क्या वॉल्यूम है, दैट इज एक्स वाई एंड, तीनों में भी मोशन तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है। ऐसा नहीं कि मोशन सिर्फ तुम्हारा एक ही इसमें होता है, लीनियर में सिर्फ लाइन में हो रहा है कि मोशन, लाइन में भी होता है, एरिया में भी बढ़ता है ना। ये पेपर है, थोड़ा बड़ा करते गए बड़ा करते गए बड़ा करते गए, एक ही सरफेस पे है, हो गया तुम्हारा एरियल मोशन, छोटा करो बड़ा करो एक ही। और क्यूबिकल मोशन यानी तुम्हारा एक वॉल्यूम में बढ़ रहा है तुम्हारा, जैसे कि बकेट में तुम पानी भर रहे हैं तो पानी में क्या वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, उसका 3 डायमेंशनल मोशन है, बराबर है। गैस है ना, तो स्मेल, अपन परफ्यूम लाए यहाँ पे रूम में मारे तो सब तरफ तुम्हारी स्मेल आ रही है उसकी, है ना। तो वो क्या है तुम्हारा 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन है क्या, जो तुम्हारा एक्स वाई एंड जेड एक्सिस में काम करता है, वो 3 डायमेंशनल मोशन, गॉट इट। 1 डायमेंशनल मोशन यानी कौन सा है तुम्हारा लीनियर, 2 डायमेंशनल प्लेनर, 3 डायमेंशनल मोशन इज नोन एज द स्पेस, है ना। 3 डायमेंशनल मोशन किस में होता है, स्पेस में होता है, वॉल्यूम में होता है, गॉट इट। हियर फ्यू क्वेश्चंस आर देयर, कुछ क्वेश्चंस है आपको शायद आंसर्स आएंगे मेरे ख्याल से, वेरी सिंपल क्वेश्चंस आर देयर, जस्ट यू ट्राई टू गिव द आंसर्स। व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मोशन, तो आपको बताना है रेफरेंस पॉइंट क्या है
आपने पढ़ा है रेफरेंस पॉइंट क्या है, समझ में आया ना आपको, है ना? तो आपको ये क्वेश्चंस पढ़ के इसके आंसर्स देना है। क्या आंसर आएगा, गजर्ज करो। द पॉइंट वेयर एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, यहाँ से ऑब्जेक्ट मूव होना चालू हो रहा है, वो पॉइंट रेफरेंस पॉइंट है क्या? पहला क्वेश्चन। सेकंड ऑब्जेक्ट, पहले सभी ऑप्शंस पढ़ना है, गड़बड़ करना नहीं है। सेकंड वन, द पॉइंट्स दैट रिमेन स्टेशनरी एंड यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशंस ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट। पॉइंट वो का है, वही जगह पे है, पर दूसरे ऑब्जेक्ट को कह रहा है कि तू क्या है, मोशन में है, उसके उसके बारे में, दूसरे के बारे में बता रहा है। ये रेफरेंस पॉइंट है क्या तुम्हारा? देखिए, अ पॉइंट्स रिमेन स्टेशनरी, पॉइंट्स तुम्हारा क्या है, स्टेशनरी है, एंड यूज टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट, उस दूसरे के बारे में बता रहा है। सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, सन आ रहा है, सन दोपहर में गया है, सन शाम में आया, सन उधर गया है ना? वो पॉइंट है क्या, पूछ रहा है। द पॉइंट वेयर टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड्स, जहां पे दो ऑब्जेक्ट्स क्या हो रहे तुम्हारे, कोलाइड्स एंड टक्कर मार रहे हैं, वो पॉइंट है क्या, है ना? द पॉइंट दैट इंडिकेट्स द फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है क्या पॉइंट? नहीं होता है। तो पॉइंट क्या है तुम्हारा, होता है तुम्हारा इनिशियल पॉइंट, दैट पॉइंट्स वेयर देन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग। तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स कहाँ से मूव हो रहा है, नहीं पता है अपने को। ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बोल सकते क्या अपन, है ना? अर्थ का मोशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, पता है किसी को? मून का मोशन स्टार्ट कहाँ से हुआ है, पता है? नहीं है। तो फिर आंसर कौन सा आएगा? द पॉइंट्स रिमेन स्टेशनरी एंड यूज्ड टू डिस्क्राइब। वहाँ पे आप जैसे क्या बोले, आप क्या बोले, आप ट्रेन में जा रहे हैं तो आप क्या बोले, झाड़ पीछे गए, आप स्टेशनरी थे, आप जगह पे थे, है ना? झाड़ पीछे जा रहे थे आपके लिए, तो आप वहाँ से ऑब्जर्व कर रहे थे, बराबर है? आप जगह पे से हो, आप बोल रहे दोपहर में सन मेरे सर के ऊपर आया, शाम में सन राइट साइड को था, लेफ्ट साइड को था, इधर था, उधर था, वहाँ पे आप क्या थे, स्टेशनरी थे, बराबर है? तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। इसलिए गड़बड़ करना, समझे? गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टडी ऑफ मोशन व्हाई इज अ रेफरेंस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। क्यों रेफरेंस पॉइंट इंपॉर्टेंट है? मैंने बताया, टू स्टडी द मोशन वी रिक्वायर एटलीस्ट 2 points which are reference and object point। तो रेफरेंस पॉइंट आपको पता ही नहीं होगा तो आप जज कर सकोगे मोशन है या नहीं है, ऑब्जेक्ट मोशन है या नहीं, कर सकोगे? नहीं कर सकोगे। तो क्या ऑप्शन बोल रहा है, इट डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट की स्पीड समझती है क्या? ओके। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द मोशन। शेप समझा है कि रेफरेंस पॉइंट से? शेप समझता है क्या? नहीं। It proves the stationary locations to observe and describe the motion of the other objects and it defines the acceleration of the object। तो कौन सा पॉइंट सही है इसमें से? सी। वेरी गुड। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, आप आंसर दे रहे, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। वेरी नाइस, गुड। द नेक्स्ट वन, देखिए इसको भी ट्राई करना है आपको। इन द स्टडी ऑफ मोशन व्हाई इज अ रेफरेंस, सेम क्वेश्चन, ओके सॉरी, क्वेश्चन दिया है देखो, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ रेफरेंस पॉइंट्स इन द स्टडीज ऑफ मोशन, प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ, इलस्ट्रेट्स हाउ अ रेफरेंस पॉइंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्कस द रोल ऑफ रेफरेंस पॉइंट इन डिटरमाइनिंग द पोजीशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो रेफरेंस पॉइंट का रोल बताना है आपको, रेफरेंस पॉइंट कहाँ इंपॉर्टेंट है, कहाँ क्या रोल क्या उसका, तो कहाँ है पॉइंट डिटरमाइनिंग द पोजीशन, जगह कहाँ है आपकी, पोजीशन, डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, और डायरेक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिफाइन द व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट एंड इट इज एंड व्हाई इट इज द क्रूशियल इन द स्टडीज ऑफ द मोशन। तो रेफरेंस पॉइंट का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों है, वो आपने का भी देखना है। ओके तो क्या पूछ रहा है, पढ़ो, कोई पढ़ सकता है ऐसे? हाँ, इसका आंसर आपको देना है ना? तो रेफरेंस पॉइंट का क्या क्यों जरूरी है, क्योंकि मुझे डिस्टेंस, अभी देखो क्या है, मुझे कब समझ में आएगा, रेफरेंस पॉइंट में यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी जैसे कि एग्जांपल के लिए बताता हूँ आपको, चलो ये समझ में आया ना आपको? हाँ, तो अभी मैं ही बताता हूँ आपको आंसर्स। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ब्लैंक पेज लेता हूँ एक, चलेगा? तो एग्जाम्पल लेंगे, चलो एक इमेजिन करो कि आप में से कोई दोस्त ले लो, 1 2 3, तो लेट मी कंसिडर द 3 फ्रेंड्स आर देयर, ए बी एंड सी। पहले क्या है, तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन पे है, तीनों फ्रेंड्स है ना? समझो नाम एक का ए नाम है, दूसरे का नाम बी है, तीसरे का नाम सी है। तो क्या हो रहा है, सपोज दोनों की दोस्ती है, सपोज ये 2 दोस्त है आपके, कौन, ए और बी, तीनों ही दोस्त है, पर
कुछ कंडीशन है, दोनों एक बाइक पे 2 ही जन जा सकते, 3 जन जा सकते हैं क्या? नहीं। तो क्या करे, 2 जन तुम्हारे कहीं जा रहे, कहीं बाइक पे जा रहे हैं, सपोज ए और बी कहीं बाइक पे जा रहे हैं, और वो सपोज थोड़ी देर के बाद में कहाँ पे आ गए, वो यहाँ पे आ गए, बराबर। आफ्टर सम टाइम, बिकॉज मोशन के लिए क्या लगता है, वी कैन चेंज द पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। टाइम लगेगा, पोजिशन चेंज हो गई, तो क्या है तुम्हारे ए और बी क्या है, तुम्हारे मोशन में है। तो अभी देखो सबका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सबका बोलने का तरीका क्या है। तो क्या बोलेगा सी, क्या बोलेगा, मेरे दोस्त आगे गए, ऐसा बोलेगा ना सी वाला। क्या बोलेगा सी दोस्त के बारे में, ए और बी दोनों आगे गए बोलेगा। ए क्या बोलेगा सी के बारे में, सी पीछे रह गया। बी क्या बोलेगा सी के बारे में, सी पीछे। ए क्या बोलेगा बी के बारे में, ए क्या बोलेगा बी के बारे में, ऐसा बोलेगा क्या? ए बोलेगा क्या हम दोनों आगे गए, बोलेगा क्या बी मेरे साथ है, और बी बोलेगा ए मेरे साथ है, ऐसा ही बोलेगा ना, करेक्ट है। तो ये देखो, तो अब इसके लिए क्या है, देखो अभी ए के लिए बी क्या है तुम्हारा रेस में है, और बी के लिए ए क्या है तुम्हारा रेस में है, बराबर है। आप रनिंग कर रहे हो, आप बहुत जोर से भाग रहे हो, है ना, तो आप बोलते कि मेरी आंख और नाक कान सब आ गया है, ऐसा बोलते हैं, यू आर यूनिट ना, बराबर है। हा? तो क्या है तुम्हारा ए के लिए बी रेस में है, बी के लिए ए रेस में, क्योंकि दोनों साथ में ही गए दोनों, बराबर है। अभी जैसे कि आप अभी यहाँ पे हो, तो आपका दोस्त बाजू में है, आप बोल रहे हो उन्हें मोशन में है बोल के बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे? अपन तो अर्थ पूरी रोटेट हो रही है ना, बराबर है। तो उसमें आप भी, वी आर इन वन बस, आप एक ही व्हीकल में सपोज, क्योंकि अर्थ भी एक बड़ी गाड़ी है सपोज, तो अपन बोल रहे क्या झाड़ मोशन में है, ये प्लैनेट मोशन में है। अपन कंसिडर क्या करें, रेफरेंस क्या करें, अपने से डिस्टेंस चेंज हुआ क्या उसका, अपने से चेंज हुआ क्या? नहीं। तो इसलिए क्या है, इस ए और बी क्या है तुम्हारे दोनों भी एक, ए के लिए बी रेस में और बी के लिए ए रेस में, इसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो गया। तो और इसी के लिए दोनों भी क्या है मोशन में है, वो तो ए आगे गया और बी आगे गया, बी के लिए सी पीछे रहा और ए के लिए पीछे रहा, बट ए के लिए बी मोशन रेस में और बी के लिए ए भी रेस में है। तो इसलिए क्या है, मोशन इज ए रिलेटिव फिनोमेना, सबका रिलेशन अलग है। देखो यहाँ पे सबका ओपिनियन अलग है, समझे, है ना। क्योंकि आप कंसिडर करो कि अपन भी एक बड़े व्हीकल में है, अर्थ भी सपोज बड़ा व्हीकल है, सपोज ट्रेन में आप सफर कर रहे हो, आपके आजू बाजू में पैसेंजर बैठा है, आप बोल रहे क्या उन्हें बहुत आगे जा रहा है, बोलते उन्हें ये प्लेटफॉर्म ये गाँव जा रहा है, हम सब गाँव में साथ में जाते हैं, ट्रेन मोशन में होती है, तो अपने बाजू में बैठा है, तो जब अपन बोलते कि उन्हें मोशन में है, मैं रेस में हूँ, नहीं बोलते ना, बिकॉज वी आर रिलेटिंग द मोशंस विद आवर मीन्स अपने से रेफर करते हैं अपन क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, गॉट इट। देखिए तो यहाँ पे देखो बेसिस ऑफ मोशन, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो पिक्चर, क्या देख रहा है आपको, पिक्चर देख, ये पिक्चर देखिए क्या लग रहा है आपको, ये पिक्चर देखिए क्या लग रहा है, और ये पिक्चर क्या दिख रहा है। ऐसा इमेजिन करो कि आप क्लास में हो और आप क्लास से ऑब्जर्व करिए, एक पोजीशन से ऑब्जर्व करिए, आप मोशन में नहीं हो, you are in rest, and if suppose just imagine from the position what we are observing, इसमें क्या लग रहा है आपको, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये जो आराम से रेस्ट में है, लग रहा है क्या आपको पिक्चर देख के, ये लेडी क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है, ऐसा लग रहा है, और ये बंदा भाग रहा है, ऐसा लग रहा है ना आपको। क्या सर तुम मजाक कर रहे हैं बोलेंगे मुझे, ये तो फोटोग्राफ से, ये कहाँ भाग रहा है, समझो थोड़ा सा, है ना, वी हैव टू इमेजिन। तो इसको जो पोजीशन यहीं पे, तो कहीं ये तो फोटो है सर, ये नहीं भागेगा, बट फ्रॉम द पोजीशन यहाँ पे दिया ना, इसका एरो दिया, इसका मतलब क्या है, ये मोशन में है, ये भाग रहा है, बराबर है। तो इसमें बताते अब ये क्या है, रेस्ट में है, और ये क्या है तुम्हारा मोशन में है। तो मोशन का मतलब क्या है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, किसके साथ चेंज हो रही है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। एक समय पे यहाँ पे था, दूसरे समय पे चेंज होगी पोजीशन, क्या उसकी चेंज होगी, टाइम के हिसाब से चेंज हो गई उसकी पोजीशन, समझे। तो ये क्या है तुम्हारा मोशन। तो देखिए आगे, तो सेम एग्जांपल, रेफरेंस पॉइंट्स एंड द रेफरेंस फ्रेम। तो सेम एग्जांपल देखो, मैंने जो बताया आपको वही है, बच्चों का ए बी सी 3 फ्रेंड्स है ना, तीनों भी मूव हो रहे गाड़ी में। तो क्या है, ए के लिए एक ही गाड़ी में, तो ए के लिए बी क्या है तुम्हारा रेस्ट में, और बी के लिए ए भी रेस्ट में है। पर सी के लिए क्या हो रहा है, ए और बी दोनों भी आगे जा रहे हैं, है ना, मोशन में है, और ए और बी के लिए सी भी तुम्हारा मोशन में, ये पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है ना, एक व्हीकल तुम्हारे आगे जा रही है ना। तो इसके लिए सी क्या बोलेगा, सॉरी, मेरे दोस्त कहाँ निकल गए, आगे निकल गए,
बराबर, इसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है सी का। इनका ए और बी क्या बोलेंगे, मेरा दोस्त पीछे रह गया बोलेंगे, और इन्हें बोलेगा क्या, ए बोलेगा क्या, मैं बी आगे क्या बोल के बोलेगा क्या, है ना, बी बोलेगा कि ए पीछे रहे बोलेगा क्या, नहीं, वो दोनों साथ में एक ही व्हीकल में, उनके दोनों में रिलेटिव डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या, उनके दोनों का डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या, नहीं, दैट इज द रेफरेंस पॉइंट। अभी देखो इसमें से पॉइंट क्या है, यहाँ पे रेफरेंस कर रहा है, और एक फ्रेम है, एक पूरे चौकट में है, कौन, ये दोनों भी, यहाँ पे ए और बी क्या है, एक फ्रेम में है ना, तो ये क्या तुम्हारा रेफरेंस फ्रेम, ये पॉइंट यानी सिंगल पॉइंट एक फ्रेम में देख रहा है, यानी क्या रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहाँ से देख रहा है उन्हें, अर्थ से देख रहा है, तो अर्थ अपनी रेफरेंस फ्रेम हो गई। बस में से देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, बस में से हाँ क्यों बोले सर, ट्रेन में भी लोग आने वाले जाने वाले होगा, क्या अपन बोलते जब ट्रेन में जब आता है ना, वो अपने को कुछ खरीदना है, तो है कुछ भागने वाला आदमी, ओ भैया आगे गए तुम आओ इधर, इसका मतलब वो आदमी क्या है, तुम्हारे लिए मोशन में है। ट्रेन भी मोशन में, लेकिन आप नहीं बोलते ट्रेन भी जा रही है, आदमी जा रहा नहीं बोलते, अपने बाजू वाला आदमी रेस्ट में। तो अपने लिए ट्रेन क्या होगी वो टाइम पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अपन ट्रेन के बारे में ही सोच रहे हैं। बस में तो अपन बस के बारे में सोच रहे हैं, अर्थ में तो अपन अर्थ के बारे में ही सोच रहे, वो अपनी जो अपना एरिया है, जो सराउंडिंग है, वो सराउंडिंग यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझा, रेफरेंस समझ में आया, कहाँ से फ्रेम समझ आने, फ्रेम यानी वो सराउंडिंग, वो एरिया, वो दायरा, इट इज नोन एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। गॉट इट नाउ, क्लियर, कोई डाउट है इसमें, नो डाउट, वेरी गुड। नाउ हियर द ऑब्जेक्ट विल बी द स्टेट ऑफ बॉडी ऑफ रेस्ट एंड मोशन। आपको बताना है बॉडी क्या है तुम्हारी, रेस्ट में है या मोशन में है। देखो, द पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है आपकी, वहीं पे हो आप नहीं, यानी कोई भी बॉडी समझो, एनी बॉडी है ना, तो क्या है तुम्हारी, रेस्ट में होगा या मोशन में होगा, ये रेस्ट में होगा। अब क्या है, पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के हिसाब से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट तुम्हारा पोजीशन चेंज कर रहा है उसका, तो वो क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे टाइम एंड सराउंडिंग में आना चाहिए। एक्चुअली सराउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सराउंडिंग यानी तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सराउंडिंग का मतलब क्या है तुम्हारा, यहाँ पे आना चाहिए था विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, सराउंडिंग भी आना चाहिए था, पर कोई भी एक भी चेंज होता है तो भी क्या बोलेगी, तू मोशन में, ये तुम्हारा मोशन में है, और ये क्या है तुम्हारा रेस्ट। व्हाट इट, समझ में आ गया, विल प्रोसीड नाउ। देखिए, तो यहां पे क्या है, अर्थ और मून, तो यहां पे देखो, तो अब क्या है, ये दोनों भी क्या है, ऑब्जेक्ट मोशन में है, दोनों भी ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में। ऐसा आपको लगता है, मुझे लगता है क्या, क्यों नहीं लगता मुझे, सर तुम्हारे को समझता ही नहीं सर, हाँ ऐसा है क्या, फिर मुझे लगता है कि मून ही मोशन में है ना। मैं क्या करता हूँ, मैं सपोज यहाँ पे हूँ, हाँ मैं यहाँ पे हूँ, इंडिया कहाँ है इस पे, चलो कोई बात नहीं, मैं यहीं पे कहीं पे हूँ, हाँ मैं सपोज यहाँ पे हूँ, ये मेरी पोजीशन है, मैं क्या बोलूँगा, मून क्या है, मोशन में है, मून कहाँ है, घूम रहा है, मैं ऐसे ही बोलूँगा। मेरा बोलना सही है गलत है, क्या मैं बोलूँगा मून जगह पे मैं अर्थ घूम रही है, ऐसा बोलूँगा, एक्चुअली अर्थ भी घूम रही है, लेकिन मेरे लिए क्या है, अर्थ रेफरेंस पॉइंट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है मेरे लिए, यहाँ पर अर्थ है ना। मैं अर्थ से ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, मून मोशन में है। सपोज मैं मून पे जाता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, अर्थ मोशन में समझे, जब मैं बोलूंगा अर्थ मोशन में है ना। जब मैं सन पे जाता हूं, जब मैं बोलूंगा अर्थ मोशन में है, नहीं तो मैं क्या बोलूंगा, सन मोशन में समझे, क्योंकि मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, मेरा अर्थ है ना। अर्थ मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो मैं क्या करूंगा, अर्थ को कंसीडर करूंगा, मैं अर्थ के बारे में मैं सोचूंगा, अर्थ क्या है मेरा, यहाँ पे जीरो पे है, ये ओरिजिन है मेरा, तो यह कंपैरिजन में ये कितना डिस्टेंस चेंज कर रहा है, यहाँ से डिस्टेंस क्या चेंज हो रहा है, वो क्या है तुम्हारा, वो ऑब्जेक्ट का मोशन। यहाँ पे एक समय पे मून यहाँ पे था, बाद में मून यहाँ पे गया, बाद में मून यहाँ पे आया, है ना। तो वो क्या है, समय के हिसाब से मून क्या है, पोजिशन चेंज कर रहा है, टाइम के हिसाब से मोशन क्या कर रहा है तुम्हारा, मून चेंज कर रहा है। इसलिए मेरे लिए क्या है, मून इज इन अ मोशन। तो मैं मून पे जाऊंगा तो मेरे लिए अर्थ क्या आएंगी, मोशन में आएंगी। सन भी मेरे लिए मोशन में नहीं है ना, सन भी मेरे लिए क्या है, एक्चुअली अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, पर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, सन मोशन में है, बराबर है। सन सुबह ईस्ट में आता है, दोपहर में सर्व के ऊपर आता है, नॉर्थ में रहता है, और शाम में वेस्ट में, है ना।
सन सेट इन वेस्ट, तो मैं ही कहता हूँ बिकॉज आई एम रेफरिंग टू हुम, टू मी, है ना, मैं अर्थ को रेफर करता हूँ। समझ में आ गया? तो यहाँ से आपको रेफरेंस पॉइंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आएगा। ये आप यहाँ से करें तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बन गया? तुम्हारा अर्थ। यहाँ से करें तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बन गया? मून, है ना। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ से? मून तुम्हारा मोशन में है, एज वेल एज द सन आल्सो इन अ मोशन। एक्चुअली हो रहा है मोशन किसका? इसका। लेकिन आप क्या बोलोगे? सन भी मोशन में है और मून भी मोशन में। गॉट इट? देखिए, तो अभी टाइप्स ऑफ मोशन, द वेरियस टाइप्स ऑफ मोशंस आर देयर, बहुत से टाइप्स ऑफ मोशन है ना। तो अपन क्या करें? कुछ मोशन को डिफाइन किए, वी डिफाइन द मोशंस इन अ पर्टिकुलर टाइप। तो व्हाई? बिकॉज टू अंडरस्टैंड। तो आप बोलेंगे सर ने बताया सर कोई भी ऑब्जेक्शन का पोजीशन और टाइम चेंज हो तो मोशन है, लेकिन आपको उसमें से एनालाइज करना है, आपको कैलकुलेट करना है ना। तो अपन कैलकुलेट करने के लिए कुछ मोशंस के क्या करें? तरीके अपन क्लासीफाई किए। जैसे कि फर्स्ट वन, डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट्स, अबाउट द डिपेंडिंग अपॉन द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसके रास्ते से डिफाइन किया अपन। कैसे किए? जैसा ऑब्जेक्ट जाता है, जैसे कि बटरफ्लाई यहाँ पे ए है, बटरफ्लाई यहाँ पे से उड़ते उड़ते यहाँ पे गया, 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 यहाँ पे आ गया। वी डोंट नो द पाथ ऑफ द बटरफ्लाई, कैसे जाएगा? माता पता है कि आपको बटरफ्लाई कहीं पे भी उड़ता है ना, पंछी कहीं पे भी उड़ता है। दिस काइंड ऑफ द मोशन इज नोन एज द रैंडम मोशन। क्या कहेंगे उसे? रैंडमली कहीं पे भी जा रहा है, कुछ पता है क्या उसका? किसका आता है ना पता, लेकिन जा रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है, बराबर है। वो टाइप का मोशन कौन सा है तुम्हारा? रैंडम मोशन। समझ में आ गया? अब उसके बाद में का मोशन दूसरा क्या है तुम्हारा? मैंने बताया, तो समझो यहाँ पे ए पे है आप, तो यहाँ से लेके आप कहाँ गए? 20 पे गए, है ना, ये रोड था आपका। तो यहाँ पे क्या था? ये मोशन सीधे लाइन में गए आप, तो इसको बोलना है, क्या बोलना है आपको? लीनियर मोशन। तो मोशन इज ऑफ द पार्टिकल अराउंड द स्ट्रेट लाइन। जो पार्टिकल का मोशन कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन में होता है, उसे क्या कहोगे आप? लीनियर मोशन। करेक्ट है? अब इसमें हमेशा ऐसा ही होता है क्या? नहीं, इसमें और भी टाइप्स ऑफ मोशन है। जैसे कि आप फैन देख रहे हो, मोशन ऑफ अर्थ देखा आपने, है ना। अर्थ सन के अराउंड कैसे घूमती है? इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, दैट इज नोन एज द सर्कुलर मोशन। टिप ऑफ द फैन, टिप पे फैन की टिप है, तो यहाँ पे कैसी घूम रही है तुम्हारी? सर्कुलर घूम रही है ना। टिप कैसी घूम रही है तुम्हारी? सर्कुलर। दिस काइंड ऑफ मोशन नोन एज सर्कुलर मोशन, है ना। वॉल क्लॉक होता है, घड़ी होती है, तो घड़ी का कांटा कैसे घूमता है आपका? सर्कल में घूमता है। दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। तो इसका डेफिनेशन क्या है? द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल के सर्कमफरेंस में घूमना है, सर्कल के सर्कमफरेंस में, यानी ऐसा घूमना है। तो ये मोशन क्या होगा तुम्हारा? सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज नोन एज द सर्कुलर मोशन। समझ में आ गया? कौन से मोशन देखे आपको? रैंडम मोशन समझ में आ गया, लीनियर, सर्कुलर। और मोशन होता है रोटेशनल मोशन। अर्थ सन के अराउंड तो घूमती है, लेकिन अराउंड द स्पिन भी होती है ना। स्पिन होती है यानी क्या है? ऐसी गोल होती है कि नहीं? उसे क्या कहते हैं अपन? स्पिन। उसको तो रोटेशनल मोशन क्या कहना है उसे? जैसे कि मोशन ऑफ द फैन अलोंग द एक्सिस, ये कोने पे फैन पूरा गोल घूम रहा है। टॉप यानी तुम्हारा भौरा खेलते कि तुम? भौरा कैसे बोलता है? गोल 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 घूमता है कि नहीं? वो भौरे का मोशन क्या है तुम्हारा? रोटेशनल मोशन। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? एक ही जगह पे रोटेट होता है। अर्थ भी दिन और रात होने की वजह क्या है? दिन रात क्यों होता है? क्योंकि अर्थ क्या होती है तुम्हारी? रोटेट अराउंड इटसेल्फ, है ना। अर्थ इज अ रोटेटिंग अराउंड इटसेल्फ, इज नोन एज द रोटेटरी मोशन। समझ में आ गया? 4 टाइप्स ऑफ मोशन समझ में आ गया। एक बताया मैंने तुम्हारे को, स्पिनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। ये क्या स्पिन हो रहा है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, क्या हो रहा है तुम्हारा? स्पिन हो रहा है इस पे, एक्सिस पे। दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज द रोटेटरी मोशन, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट का अर्थ का एंगल इंक्लिनेशन है, कोई भी एंगल रहने दो, एग्जांपल के लिए फैन का एक्सिस से फिक्स है, यहाँ से फैन क्या है तुम्हारा? रोटेट हो रहा है। दिस काइंड ऑफ मोशन इज रोटेटरी मोशन। और झूला खेला है कभी आपने? झूले का मोशन कैसा होता है? एक ही पाथ पे होता है ना। झूला खेलते हैं आप तो, मोशन ऑफ पेंडुलम आल्सो, पेंडुलम होने दो, झूला होने दो। द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सेम पाथ, एक ही रास्ते से होता है, टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन। स्विमिंग मशीन, नीडल देखे तुम? सिलाई मशीन कैसी होती है? नीडल ऊपर नीचे ऊपर ऊपर जाती है क्या? एक ही रास्ते पे जाते हैं, ऊपर नीचे। तो वैसे काइंड का मोशन क्या बोलते हैं अपन? ऑसिलेटरी मोशन। मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सेम पाथ, एक ही रास्ते से जा रहा है। कैसे जा रहा है? ऊपर नीचे जा रहा है, या तो फिर आगे पीछे जा रहा है।
एक ही रास्ते जा रहा है, वो काइंड का मोशन क्या बोलना है अपने को? ऑसिलेटरी मोशन, है ना। ऑसिलेटरी मोशन को और भी दूसरा भी नाम बोल सकते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। मोबाइल में वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन होता है आपके, तो क्या है उसका फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है, वो भी क्या है, और वाइब्रेटरी मोशन आल्सो सिमिलर एज द ऑसिलेटरी मोशन। तो उसमें क्या है, तुम्हारा एक ही जगह पे तुम्हारा क्या है, मोबाइल वाइब्रेट होता है ना। तो वो काइंड का मोशन क्या बोलना है अपने को? वाइब्रेटरी मोशन। समझ में आ गया? ऑसिलेटरी मोशन समझ में आ गया, वाइब्रेटरी मोशन समझ में आ गया, रोटेटरी मोशन समझ में आ गया। और कौन से काइंड्स का मोशन आपको याद आता है? देखो, है ना, स्पिनिंग मोशन एंड रोटेटरी मोशन इज सेम, जो स्पिन हो रहा है और वही क्या है तुम्हारा रोटेटरी मोशन है ना। अभी यहाँ पे और आगे देखना है अपने को पीरियोडिक मोशंस। पीरियोडिक मोशन में क्या है, मतलब उसका टाइम पीरियड सेम है। घड़ी का काटा यहाँ पर 12 बजे यहाँ पे था, तो फिर 12 बजे वहीं पे जगह पे आया, सेम समय लगा उसे। अर्थ 365 डेज में वहीं पे आ रही है, बराबर है। 24 आवर्स में दिन और रात हो रहा है, टाइम पीरियड सेम है ना। जो ऑब्जेक्ट को कवर करने के लिए उतना ही समय लग रहा है, उसे बोलते अपन पीरियोडिक मोशन। क्या बोलेंगे उसे अपन? पीरियोडिक मोशन। सेम समय पे कहीं ना कहीं अपन जज कर सक रहे कि यहाँ पे आने वाला है वो, आप लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वो आने वाला है, उसको बोलते पीरियोडिक मोशन। अभी आप झूला खेले होंगे कभी, है ना, झूला खेले क्या? झूला दिया किसी को आपने, तो झूला आंखें बंद करके भी आप झूला दे सकते हो। क्यों? कि आपको मालूम है सेम टाइम में वो झूला वहीं पे आता है, सेम टाइम पे जाता है। झूला कैसा है? ऑसिलेटरी मोशन क्या है तुम्हारा? पीरियोडिक मोशन। सेम टाइम पे आने वाले मोशन क्या बोलते हैं अपन? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है? जो मोशन का टाइम पीरियड क्या है, सेम है। जो मोशन का टाइम पीरियड क्या है, सेम है, उसे बोलते हैं अपन पीरियोडिक मोशन। जैसे कि अर्थ 365 डेज में फिर से वही एक साल हो गया बोलते, फिर 365 डेज में वही हो गया पीरियोडिक मोशन। 24 आवर्स में दिन और रात, पीरियोडिक मोशन। ये तुम्हारा झूला ऑसिलेटरी मोशन इज आल्सो काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन, है ना। तुम्हारी गाड़ी पीरियोडिक मोशन में आती क्या? नहीं, तुम्हारी गाड़ी कभी स्पीड बढ़ाते कभी स्पीड कम करते, कभी बढ़ाते कभी, वो इज नॉन पीरियोडिक मोशन, जिसको वो पीरियोडिक नहीं है ना। पीरियोडिक मोशन सेम पोजीशन पे आना है, उसे बोलते हैं अपन पीरियोडिक मोशन। और सेम टाइम पे आना है, सेम जगह पे और सेम समय पे आना है, उसे क्या कहोगे आप? पीरियोडिक मोशन। करेक्ट है। और दो टाइप के मोशन है, वो अपने लिए नहीं है, वो बायोलॉजी के पार्ट में है। कौन से दो टाइप के मोशन है? लोकोमोशन, पता है क्या होता है? वो अपना पार्ट नहीं है ना। और एक टाइप का मोशन है, कौन सा है? लूज मोशन। तबीयत खराब हुई तो होता है ना, वो भी अपने को देखना नहीं, वो बायोलॉजी का पार्ट है। गॉट इट? समझ में आ गया क्या है? ये बेसिक मोशन अपने को देखना है। रैंडम मोशन, कोई रास्ता नहीं है, कोई पाथ नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, करेक्ट है। सर्कुलर मोशन, ऑब्जेक्ट कहाँ घूम रहा है तुम्हारा? सर्कमफ्रेंस पे घूम रहा है। रोटेटरी मोशन, ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द ओन एक्सिस, एक्सिस पे घूम रहा है, वो क्या है तुम्हारा? रोटेटरी मोशंस। ऑसिलेटरी मोशंस, द मोशंस ऑफ द पार्टिकल अराउंड द सेम पाथ टू एंड फ्रो, अप और डाउन, एक ही जगह पे आगे पीछे जाना है तो फिर ऊपर नीचे जाना, है ना वो। और पीरियोडिक मोशन, तो इसमें क्या है? पीरियोडिक मोशन कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन ही ओनली पीरियोडिक मोशंस, सर्कुलर मोशंस आर ओनली इन पीरियोडिक मोशंस, ऐसा नहीं है। रोटेशनल मोशंस आर ओनली इन पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है? जिसको टाइम पीरियड सेम लग रहा है, सेम टाइम समय पे सेम जगह पे ऑब्जेक्ट आना, उसे क्या कहोगे आप? पीरियोडिक मोशंस। वेवी मोशन में होता है, वेव्स टाइप का मोशन में होता है, ऐसा वेव्स, ऐसा। ये आपको नहीं है, आएगा आगे कभी, है ना। तो जहां से आपको जज कर सकते हो ऑब्जेक्ट कैसा जाएगा, दिस काइंड ऑफ द मोशंस आर नोन एज द रेगुलर मोशंस, है ना, और अदरवाइज रैंडम। समझ में आ गया? टाइप्स ऑफ मोशन समझ में आ गया? हाँ, तो यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ मोशन। अभी यहाँ पे बताओ मुझे आप क्या हो रहा है, कैसे मोशन से, है ना। आपको तो मैंने बता दिया कुछ मोशंस, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो ऑलरेडी नाम दिया है ट्रांसलेटरी मोशंस। ट्रांसलेटरी मोशंस का दूसरा नाम क्या है? लीनियर मोशन। दोनों का मतलब सेम है। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये गाड़ी तुम्हारी आगे जा रही है ना, इसका भी सीधा रास्ता है। ये ट्रेन का रास्ता भी क्या है? सीधा है। तो इसका मतलब ये ट्रांसलेटरी मोशन आल्सो नोन एज द लीनियर मोशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो बॉल घूम रहा है, आपको लग रहा है सर क्या है? सर इधर का डायग्राम सेम है, लेकिन ये क्या है? तुम्हारा बॉल घूम रहा है, ऐसा गोल घूम रहा है, ऐसा ये भौरा गोल घूम रहा है। ये क्या है? आदमी क्या कर रहा है? एक पैर पे डांस कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है? तुम्हारा रोटेट कर रहा है, ऐसा गोल घूम रहा है ना। मेरी गो राउंड झूला खेलते हैं ना आप, एक ही जगह पे गोल घूमता है। दिस आर काइंड ऑफ द मोशन इज नोन एज द रोटेटरी मोशन। स्पिन हो रहे, वो जगह पे घूम रहे, दिस आर नोन एज स्पिनिंग मोशन एज वेल एज नोन एज द रोटेटरी मोशन।
ऑसिलेटरी मोशन बताया मैंने, झूले के जैसा, एक ही जगह पे आगे पीछे जाना है या तो फिर अप डाउन होना है। क्या कर रहे हैं आप, ये स्प्रिंग है, इसको तुमने क्या करा है, खींचा, फिर नजदीक आया, फिर गया, फिर नीचे गया, ऐसा एक ही जगह पे जा रहा है, वो क्या तुम्हारा ऑसिलेटरी मोशन, बराबर है। तो यहाँ पे पेंडुलम, पेंडुलम इज आल्सो ऑसिलेटरी मोशन, यहाँ पे क्या झूला गया, यहाँ से जा रहा है, तो क्या है तुम्हारा ऑसिलेटरी मोशन। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, गोल घूम रही है अर्थ, तो ये कैसे होगा तुम्हारा सर्कुलर मोशन, समझ में आ गया। और इसे जो आधा पार्ट है समझो, पूरा नहीं गया है रास्ता, ऐसा इतना ही गया है, तो इसे कहते कर्विलिनियर मोशन। कर्व आ रहा है ना, तो पूरा नहीं है, लीनियर का मतलब सीधा, कर्व यानी क्या है राउंड, तो उसे कर्विलिनियर मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन भी है, कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप बाण मार रहे हैं है ना, मिसाइल छोड़े, तो मिसाइल कैसे जाता है आपका, तो क्रिकेट खेलते समय आप क्या करें, ग्राउंड पे थ्रो फेंके, तो आपने बॉल फेंका या बाउंड्री से, तो स्टंप पे लगने के लिए क्या होता है, तुम्हारा बॉल ऊपर से आके नीचे लगता है, तो ये काइंड ऑफ मोशन बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप, कहाँ मारना है, वहां से फिर बॉल ऐसा उड़ के फिर वहां पे बराबर स्टंप पे लगेगा, है ना, सीधा लगेगा क्या नहीं, ऊपर से जाके फिर नीचे लगेगा, वो काइंड का मोशन क्या बोलेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन समझ में आ गया, any difficulty in type of motion, clear, very good. Then now after that again the few questions are there. What is mean by the rest, rest क्या है, जो मोशन में नहीं है वो क्या है, रेस्ट है, ऐसा बोलना है क्या आपने को, नहीं है, सेलेक्ट करना है क्या है आंसर। एन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी इज रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग, करेक्ट है, सराउंडिंग से क्या है ऑब्जेक्ट तुम्हारा स्टेशनरी है, स्टेशनरी का मतलब जगह बदल रहा नहीं है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिव, मूविंग हो रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है क्या, मूव हो रहा है, तो इसका मतलब नहीं है। एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, चेंज कर रहा है तो रेस्ट में है क्या, नहीं है। ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द सेम पोजीशन, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द सेम पोजीशन, कब कैसा है, सराउंडिंग में है क्या, टाइम में कुछ बोला क्या, ऑब्जेक्ट सेम है तो कैसा है, ऑब्जेक्ट जगह पे है लेकिन मैं जा रहा हूँ तो भी मोशन में हो गया। ये भी ऑब्जेक्ट, तो मोस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग, फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारे को। तो आपको लगता होगा सर ऑब्जेक्ट सी भी आंसर भी डी भी बराबर लग रहा है सर मुझे, रिमेन्स इन सेम पोजीशन, वही जगह पे है ऑब्जेक्ट, हल रहा है नहीं, तुम हले तो बराबर है कि नहीं, आप हले तो भी क्या है, जैसे कि मैंने बताया, तुम पहले बात आपको लगा गलत है ना, मैं यहाँ पे था, मैं बोला बोर्ड मोशन में आ रहा है, बोला ना मैंने बोर्ड मेरे नजदीक आ रहा है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी था लेकिन मैं मोशन में था, तो फिर मेरे लिए क्या है बोर्ड, ये ऑप्शन सुटेबल है क्या, नहीं, तो ऑप्शन क्या आंसर रहेगा इसका ए। गॉट इट, समझ में आ गया आपको। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मोशन, तो अब उसका उल्टा, द चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिलेटिव टू द टाइम एंड सराउंडिंग, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन दिया, देखो अभी मोशन क्या है, चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ टाइम एंड रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग। देन ऑब्जेक्ट रिमेन्स स्टेशनरी फॉर एवर, हमेशा स्टेशनरी रहेगा, चलेगा। द ऑब्जेक्ट चेंजेस साइज, बड़ा होगा तो मोशन में आ गया, द ऑब्जेक्ट विदाउट सराउंडिंग तो पॉसिबल नहीं है, चल रही है, तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा है तुम्हारा, ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है सभी को, होपफुल, नो डाउट्स, द क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, टॉपिक इज आल्सो वेरी सिंपल। नाउ द समरी, व्हाट वी लर्न टुडे, आज अब तक क्या देखे अपन ने, देखिए बेसिक ऑफ मोशन, बेसिक मोशन के बारे में देखिए, मोशन इज अ रिलेटिव फिनोमेना देखे, है ना, when the object will be in motion, when the object will be in rest, that will cover the reference point देखे, और frame of reference भी देख लिया अपन ने आज। reference point क्या होता है, the point of origin, जहाँ से देख रहे हो, surrounding क्या है तुम्हारी, वो तुम्हारी frame of reference। the state of body, body कैसी तुम्हारी state कौन से तुम्हारे बॉडी मोशन में आती है, रेस्ट में रहती है, वो क्या है तुम्हारी बॉडी के स्टेट्स है, बराबर है। द रेस्ट एंड मोशन में से डिफरेंस देखे अपन, डिपेंड्स अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। एंड टाइप्स ऑफ मोशन में कौन से देख रहे हैं अपन ने, रैंडम मोशन देखा, लीनियर मोशन देखा, लीनियर और ट्रांसलेटरी एक ही है, सर्कुलर मोशन देखा है, रोटेटरी मोशन देखा है, बराबर है, ऑसिलेटरी मोशन देखा है, पीरियोडिक मोशन देखा है, नॉन पीरियोडिक मोशन देखा है ना। दिस काइंड ऑफ मोशन वी ऑलरेडी डिस्कस इन टुडेज टॉपिक। नाउ इट इज अ होमवर्क फॉर यू, let me try to if you are able to solve or not, which of the following examples of motion, इसमें से कौन से मोशन में एग्जांपल्स पढ़ो। अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, बुक तुम्हारी टेबल पे खड़ी है तो मोशन में है क्या, चलो। अ पर्सन वॉकिंग ऑन द रोड, मोशन में है क्या। अ कार पार्क इन अ गैरेज, अ स्टेशनरी क्लॉक, क्लॉक रुकी हुई है, स्टेशनरी है, मोशन में है क्या, नहीं, है ना। कार पार्क की है तो मोशन में है क्या, नहीं, गैरेज में है, तो इसमें क्या है,
जो पर्सन चल रहा है, घूम रहा है, तो वो क्या है, आईएनजी है, कंटिन्यूस प्रोसेस है ना। वॉकिंग चल रहा है, कंटिन्यूस प्रोसेस, इसका मतलब क्या है, वो ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, मोशन में है। समझ में आ गया है? तो नेक्स्ट वाला देखिए, पढ़ो। व्हाट डिटरमाइंस वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन। कब समझ में आएगा आपको? व्हाट डिटरमाइंस शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। शेप से समझ में आएगा आपको? नहीं समझेगा, चलो कोई बात नहीं। साइज से समझेगा? नहीं समझेगा। रेफरेंस पॉइंट्स एंड इट्स सराउंडिंग से समझेगा? अच्छा। तो कलर से समझेगा क्या? नहीं। तो आंसर क्या है अपना? रेफरेंस पॉइंट्स एंड इट्स सराउंडिंग, है ना। सराउंडिंग में क्या है, ऑब्जेक्ट, उसका रेफरेंस पॉइंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो ये अपन बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट तुम्हारा रेस्ट में है या तो फिर मोशन में है। व्हाट इट नाउ, इट इज इनफ फॉर टुडे। इफ एनीवन हैविंग डाउट इन टुडेज सेशंस, कोई आपको डिफिकल्टी है, कोई डाउट से कुछ समझ में नहीं आया है, यू कैन आस्क विदाउट हेजिटेशंस। आप पूछ सकते हो मुझे आज के टॉपिक में कोई भी डिफिकल्टी है तो। कोई डिफिकल्टी आज के टॉपिक में? सब कुछ समझ में आ गया? Very clear? No doubt? Okay. Thank you for today's topics. We'll end the today's sessions. Thank you.